Hare Krishna. So who are here last Saturday in the ecstatic Kirtan program that we had? Please come, please come. You were there? Okay, who else? Okay, quite a number of people there. So you all enjoyed? Yes. Wonderful Kirtan you all had? Heard? Very nice. Anybody remembers from any experiences that you would like to share from that Kirtan program? Other than it was really wonderful. Some of you can come little front. So if somebody comes little later, they have a space to sit in the back. So come forward. Thank you. So in between, I believe Lalit Madhavpur was also speaking something, right? Anybody remembers anything from there? Or any other experience that you had during the Kirtan? Something you felt out of the world? Something you felt different? What happens when this Kirtan is going on? Let me ask you this. Positive. Positive, okay. Positive vibes, Yeah. okay. We forgot the thoughts. Exactly. We Very- forgot the thoughts. Very wonderful thing. You are actually absorbed in the holy name, and all the other thoughts which are bothering you completely evaporates. That is what everyone is looking for. That is what meditation is all about. Right? You try to meditate, but you try to. People say let's meditate on that, light or something. How long you can? The thoughts will just overpower you. But when the Sankirtan is going on, it is so powerful. It is so powerful that it completely absorbs your consciousness into that holy name. And that is why you feel that bliss. It's not just the musical melody, that is definitely there, there is no doubt about that. But other than that musical melody is the power of the holy name. That is very, very important. Okay, so now let's come back to the Bhagavad Gita. So you've heard the holy names of the Lord. Now let's see. Again, this is nothing but the holy name of the Lord. The Lord Himself is speaking, right? The holy scripture of Bhagavad Gita. So which chapter we are in first of all? Third chapter. What the chapter entitled? चैप्टर का टाइटल क्या है? कृष्ण और अर्जुन? नहीं, क्या है? कर्मयोग. Very good. So we are discussing about the third chapter entitled Karma Yoga. What we have discussed so far, any idea, just the gist of it, so that we have to make a connection, okay? Its whole thing is in sequence, right? So we can't just let it flow like a different context, right? Does anybody remember what is happening in this chapter? How the chapter started? Why it is called Karma Yoga? See, when you ask these questions, when you connect to this, then you will have a lot of interest in studying Bhagavad Gita. As I said, it's not just a ritualistic activity that you go and do like this or Aarti kiya, that's fine. But the most important thing is you need to understand what we do, why we do. Right? So how this chapter 3 starts? Who speaks first, Arjuna or Krishna? At least let's start with that. The chapter starts with whom? Who is speaking? Arjuna. Right? What did he speak? He was confused again, right? Because what happened in the chapter 2, Krishna talked about the Sthita Pragya. स्थित प्रज्ञा के बारे में जब भी कृष्ण ने बताया कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे अपना चाल चलन करते हैं, तो वो सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अभी तो आप पता है स्थित प्रज्ञा मतलब वन हु इज अ परफेक्ट इन कॉन्शियसनेस, ही इज being equal to everybody and not bothered about loss or gain. Matra sparsha sukhonte sitoshna sukha dukkha. He tolerates both happiness and distress. Right? So you're telling me all these things, then why you are engaging me in this ghastly warfare? So that's why he's asking a question, Krishna, कि भाई मुझे वैराग्य लेना चाहिए या मुझे कर्म करना चाहिए? Whether I should work or renounce. So I'm confused with your equivocal instructions. मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे. हम लोगों को कभी कभी होता है ना कि बस हो गया, अभी रिटायर हो जाए, वैराग्य ले ले, बहुत हो गया काम करते करते, राइट?
So Arjuna is asking very similar question because he was very much afraid to perform his duty at this point in time. बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये ड्यूटी अभी जो करना था उन्हें वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. तो उनके लिए वैराग्य का रास्ता बहुत ही अच्छा था, इसलिए पहले ही बोल दिया कि मैं चला जाता हूँ जंगल में. और अभी कृष्णा ने बोला तो और भी अच्छा हो गया. बोला कृष्णा why you are confusing me? And that is where Krishna starts talking about the karma part. That is where this chapter is entitled कर्म योगा. हाँ, तो कर्म के बारे में जो बता रहे हो, क्या बता रहे हैं अभी? सबसे पहले जो when Krishna starts speaking, he talks about the निष्काम कर्म योगा. निष्काम कर्म योगा कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं. हाँ, अकर्म, विकर्म है, सकर्म. What is सकर्म? सकर्म क्या होता है? जो हम लोग पायस एक्टिविटीज करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, उसे सकर्म कहते हैं. विकर्म क्या है? पाप कर्म. हाँ, जो शास्त्र में नहीं निषेध है, वो जो एक्टिविटी करते हैं हम, किसी का छीन लेना, किसी का नुकसान पहुंचाना, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना वगैरह, these are all पाप कर्म, these are called विकर्म. हाँ, and what is अकर्म? अकर्म मीन्स कुछ भी नहीं करना, ऐसे बैठे रहना बस. अकर्म मीन्स कर्म जो आप करते हो खुद के लिए नहीं करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो. वो चाहे कुछ भी हो सकता है. इसीलिए भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं गीता में कि दुर्योधन और अर्जुना ऊपर से ऐसे ही लग रहा है कि सेम ही कार्य कर रहे हैं, बट अर्जुना अकर्म कर रहे थे और दुर्योधन कौन सा कर्म कर रहा था? सकर्म, राइट? विकर्म कर रहा था. पर बाहर से कोई भी देखेगा तो बोलेगा अरे यार दोनों लाइन लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं. बट अर्जुन ने जब भी भगवान को बोला करिष्ये वचनम तव, तभी से अर्जुन ने जो फाइट किया, he did not fight for himself. वो खुद के लिए नहीं लड़े. किसके लिए लड़े? भगवान के लिए लड़े. क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी, इसके लिए वो लड़े. ठीक है, तो वो पहले निष्काम कर्म बताया जाता है. उसके बाद कृष्ण अंडरस्टैंड्स के भाई कई लोगों के लिए निष्काम कर्म तकलीफ वाला काम हो सकता है, तो बोले कि अगर निष्काम कर्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कर्म कांड करो. कर्म कांड का मतलब क्या है? आप जो शास्त्र में बताया गया है कर्म उस हिसाब से करो. यज्ञ करो अपना, चाहे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, चाहे पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, धन की वृद्धि के लिए कर रहे हो, पर आप कर्म कांड से करो वो सब चीज. बिकॉज एनिमलिस्टिक लाइफ तो कोई मतलब ही नहीं है. तो कृष्ण से डू टू द कर्म कांड. एंड देन नाउ कृष्ण इज कमिंग टू द पॉइंट वेयर ही इज सेइंग दैट देयर आर पीपल हु डू द कर्म टू लीड पीपल in a way so that others can follow. यदराज चरितरी श्रेष्ठ, ये जो यहाँ पे वर्ष बताया गया है, कृष्ण gives the example of जनक महाराज. अभी जनक महाराज को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं थी, बट वो क्यों राजपाट का कर्म कर रहे थे? ताकि वो देख के बाकी के लोग भी उनको फॉलो कर सके. तो हमें अच्छे एग्जाम्पल्स की जरूरत है. आजकल दुनिया में लोग क्या करते हैं? एवरीबडी ये न के न प्रकार है न किसी न किसी को तो फॉलो करते हैं. हाँ, पहले सोशल मीडिया के पहले फॉलो करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था बताना. अभी बहुत इजी हो गया ना, वो फॉलो बटन भी आता है. Whom are you following? राइट? तब किसको फॉलो करते हैं? You want to follow somebody who is your ideal. अभी आइडियल कौन है आज के जमाने में? हाँ, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, म्यूजिकल स्टार्स. द कोल्डप्ले केम, राइट? It's an my God, amazing thing, huh? The Coldplay. I was amazed to hear that the tickets are sometimes so costly, 2 lakhs it official, and sometimes in the black it can go up to 50 lakhs. People can buy such tickets. Can you imagine? Because they want to follow such great people. What is so great about them? They sing so well. बहुत अच्छे से गाना गा सकते हैं, बहुत अच्छे से ऐसा शो दिखा सकते हैं. But is that what you really want to do in your life? तो हमें इनहेरेंट नेचर है हर एक जीव का किसी न किसी को फॉलो करने का. इसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आपको यू आर इन अ लीडिंग पोजीशन, सो यू हैव टू सेट एन एग्जांपल so that others to follow. Even Krishna himself says, I am the supreme personality of Godhead. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करता हूं क्योंकि लोग फॉलो करेंगे मुझे देख के. इसके लिए भगवान इतना सारे कर्म कर रहे हैं.
So that is where we are, and now we'll continue these verses as how Krishna is explaining the further aspects of karma. Okay? So we'll start with the verse number 25, but I'll just read the last two verses so that we have a connection. In the verse number 23, that is what exactly you were talking about. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties of Parth, certainly all men would follow my path. And verse number 24, Krishna says, if I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. So now let's go to the verse today. It's verse number 3.25. You can repeat after me. Sakta karmani avidvamsho yatha kurvanti bharata kuryad vimsa vidvams tatha shaktas chikshur loka sangraham. Sorry, it is chikshur loka sangraham. Sorry, loka sangraham. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Again, it is the continuation of the how one should follow the right people, right? And that is what the example Krishna is again talking about. Said, as the ignorant perform their duties with attachment to the results, the learned may similarly act, as we are talking about Arjun and Duryodhan, right? Both are doing the same activity, but the learned may similarly act, but without attachment. Now he was fighting, but without attachment, for the sake of leading people to the right path. Who would like to read the purport? I'll read. Yeah. Perfect. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities. But one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. Okay. So to understand this verse, that both are acting similarly. Let's say we have today fortunate to have Ras Gaurang Prabhu amongst us. He's one of our senior devotee of congregation. Now, he is a wonderful teacher. I think you teach CA students, right? And there are many other tuition classes who also teach CA students, right? Now, apparently, if you meet him, if you do not know his background or anybody, because he's just one among all the tuition teacher who teaches CA students, right? You cannot make out, right? Unless until you really discuss with him, you really understand who is he and you understand his background, then you understand, okay, wow, this person is really having a deep Krishna consciousness in his heart, right? So similarly, I'll give you one story that will really help you understand this particular verse. So once there was a sadhu going in a first class compartment in a train. Okay, he was going, and next station came, and one very affluent businessman, okay, very well-to-do businessman, gets into the first class compartment having a 2-3 baggages with him. He settles his bag, and his seat is happened to be next to this sadhu. So he sits next to him, and he is in his 3-piece suit and everything, very well dressed and everything. So he looked at the sadhu. He's wondering, what is the sadhu is doing in first class? What place sadhu has is in first class. And the first class is for all the businessmen and aristocratic people. What sadhu is doing here? So he thought of having some fun with sadhu. So he said, he asked his permission, can we have conversation? So I said, yeah, sure, why not? So he said, I'm just observing that I have a luggage and sadhu also had his
luggage, right? So he said, I have a luggage. You also have a luggage. I said, yeah. I have a first class ticket. You also have a first class ticket. So I think the only difference between us is just the dress, isn't it? I am wearing a, like, this 3-piece suit, and you are wearing a cloth of a saint or a sadhu. This is the only difference, isn't it? Now sadhu understood, right? This where this person is going. So he did not say anything. They had a long journey. Both had to go a long way. Next station came. So sadhu said, like, why don't we just get down and have some refreshment? So both got down from the train. Train was supposed to stop for some time, right? They got down and having their refreshment. And sadhu saw the green signal happen. And the train almost started slowly. And this person is putting his plate and going to board the train. Sadhu hold his hand. What you are asking? You're saying you're having a, same ticket, same luggage. What you are saying about that? Can you just explain it again one more time so that I can answer the question? He said, we will answer that. वो बाद में बताएंगे. पहले हमारी गाड़ी छूट रही है साधु महाराज. पहले बैठ जाते हैं गाड़ी में, फिर बाद में डिस्कस करते हैं. बोलते नहीं, पहले बताओ ना क्या बात क्या कर रहे थे हम यार. बहुत सही क्वेश्चन था आपका. ड्रेस के बारे में क्या बता रहे थे, अब जरा एक बार बताओ वापस से. है ऐसा 4-5 बार हुआ दोनों के बीच में. हाँ, तो दिस, एंड बाय दैट टाइम द ट्रेन हैज पिक्ड अप द स्पीड. तभी बंदा समझ गया कि साधु महाराज क्या कहना चाहते हैं. एंड देन ही एक्चुअली फेल एट हिज फीट. हाँ, तभी वो साधु महाराज के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा. क्यों? क्योंकि उसमें उसको समझ में आ गया कि मेरे और साधु महाराज के बीच में सिर्फ ये ड्रेस का अंतर नहीं है. क्या अंतर है? ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड. ही कैन गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनी टाइम. वो कभी भी कुछ भी छोड़ सकते हैं. पर मेरा एक अटैच भी नहीं छोड़ सकता. हाँ, मेरा एक सूटकेस भी मैं नहीं छोड़ सकता. मैं कितना डिस्टर्ब हो गया. So these are the sadhus. Apparently looks के हाँ सिर्फ ड्रेस में अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है. ऐसा नहीं है. What makes a sadhu is the one who is actually connected with Krishna. So that is what exactly this verse is telling. Okay, we'll go to the next verse. Verse number 26. Na buddhi vedam janaye ajnanam karma sanginam जोशे सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्. So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should be engaged them in all sorts of activities for gradual development of Krishna consciousness. Vedash, I'll skip this. It's okay. Vedashcha sarvar aham eva vedya. This is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fugitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in the Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The loving Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not the disturbed in his activity, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man
there is no need to follow the Vedic rituals because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one should otherwise derive from following one's prescribed duties. Okay, so this is a very, very wonderful verse where Krishna is saying that not to disturb people who are engaged in sense gratification, right? Rather, you should show them by your own example so that they are inspired, right? So here, very beautifully explained here that in the first few lines of the purport, where Srila Prabhupada is saying that when a person does the ritualistic activities offered in the Vedas, slowly but surely he'll come to the platform of Krishna consciousness. Or he'll start asking questions related to God. How? So what are the different ritualistic activities we have in Vedas generally? So have you seen people saying that आज मंगलवार है या गुरुवार है, आज मैं अंडा नहीं खाऊंगा या मांस नहीं खाऊंगा, हाँ? आज शनिवार है, ऐसा नहीं कर सकते, राइट? और जब भी नवरात्र रहेगा तो बोलेगा नहीं मैं एक ही बार खाऊंगा, नवरात्र रहेगा तो बोलेगा नहीं कांदा लहसुन भी नहीं खाऊंगा, होता है ना? So all these are the ritualistic activities offered in the Vedas. तो अगर पर्सन में थोड़ा भी इंटेलिजेंस रहेगा ना तो सोचेगा कि ये सब चीजें ये दिनों में खाने को मना क्यों किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? अगर गड़बड़ नहीं होती थी तो क्यों मना करते थे कि भाई इस दिन मत खाओ? श्रावण में भी हाँ, श्रावण में भी, हाँ, पूरा एक महीना लोग उपवास करते हैं. तो ये सब चीजें जब भी आती है तो थोड़ा ट्यूबलाइट अपना जलना चाहिए, कह रहे ये दिन पे मना किया है मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है ये खाने में, हाँ? तो ये जो चीजें हैं दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. एंड बाद में व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट यू एंगेज, डू नॉट डिस्टर्ब देम. ऐसा मत करो कर ये ऐसा नहीं करना. इसीलिए when you come to Krishna consciousness you have heard this dialogue from many of the devotees. हाँ, कई सारे भक्तों से आपने सुना रहेगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ जोड़ना है. हाँ? You don't have to give up anything. आपको सिर्फ जोड़ना है. क्या जोड़ना है? आपको कृष्ण को जोड़ना है आपकी लाइफ में. और जब भी आप कृष्णा को जोड़ दोगे ना अपनी लाइफ में तो बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिक टेकन केयर हो जाता है. हाँ? ऑटोमेटिक आपका जो कांदा लहसुन है वो भी आपको ही लगता है कि नहीं खाना चाहिए मुझे, ऐसा कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा एक जो खा रहे मत खा. उससे कभी आप जोर जबरदस्ती से आप किसी को भी भक्ति नहीं करवा सकते हो. अंदर से प्रेम होगा तो ही आप कर पाओगे. चाय कॉफी भी अपने आप. I can tell you about myself. I used to drink 10 cups of tea every day. It is such a amazing thing how Krishna consciousness works. And there are so many stories. People who are addicted to even alcohol, addicted to meat eating, hardcore meat eaters. When they came in Krishna, जब भी कृष्ण उनके लाइफ में जुड़ गए ना तो ये जो भी अनवांटेड चीज है ना अपने आप छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है. वो बहुत ही जरूरी है. और इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि somehow or other you stay in contact with these people. उनको कुछ मना मत करो. अभी आप जैसे देखो कि राज गौरव प्रभु can also share when you meet with other your colleagues, right? अभी आप एक ही टेबल पे बैठे हो, आप अलग से अपना भोजन ले रहे हो और देखते कि अरे यार ये रोज इतना सात्विक भोजन खाता है. Then they start having a conversation. आप उनको थोड़ा प्रसाद दोगे like that. So slowly but surely they will start inquiring in you, and that is how you help them. उसी तरह से आप उनको मदद कर सकते हो कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए. एंड देन लास्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर कोई ऐसा जीव है, अगर आप देखोगे कभी कभी कोई कि बचपन से ही उसको इसमें लगाव हो गया, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उसको ये सब रिचुअलिस्टिक में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अल्टीमेट पर्पस अगर पा लिया है तो उसको बाकी के लेवल में जाने का कोई जरूरत ही नहीं है. बिकॉज कृष्णा इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. इफ ही इज प्लीज्ड देन एवरीथिंग इज टेकन केयर. तो आपको ये सब बाकी के रिचुअल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. एंड टुडे वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स एंड मोस्ट कोटेड वर्स आल्सो of Bhagavad Gita and most misunderstood verse as well. Along with that, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख, उसके जैसा ही एक और वर्स है जिसके बारे में लोग काफी कंफ्यूज है. तो बट वी विल डिस्कस वेरी elaborately this particular verse.
So you can repeat after me. Prakrute kriyamanaani gune karmani sarvasah ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. Okay. Two persons, one in Krishna consciousness and other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform. But there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of Supreme God. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his innocence. He does not know that this gross and subtle body is creation of material nature, under the order of Supreme Personality of Godhead, and such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Kesha, or the master of the senses of material body. For due to this long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Okay, thank you. So first of all, let's understand there are few things being explained here, right? What is Prakriti first of all? Your neighbor? Huh? Nature. Okay. So the entire Mother Nature is Prakriti. Okay. There is another thing is talks about gune. What are the gunas? Guna का मतलब क्या है? कितने प्रकार के गुण होते हैं? 26 तीन. What are तीन कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. सात्विक का कोई एग्जांपल दे सकता है? सत्वगुण किसे कहते हैं? सत्वगुण किसे कहते हैं? सच बोलना. हाँ? सच बोलना. सत्य. अच्छा, okay, that's one of the thing. Okay. Okay, very good. What else? अच्छा ठीक है, उल्टे से चालू करते हैं. I think सत्वगुण डिफिकल्ट हो जाएगा. What is तमोगुण? तमोगुण क्या है? सोना खाना. हाँ, आलस्य, सोना खाना. खाना मतलब कैसा खाना वो भी इम्पोर्टेंट है. हाँ. वो भी तमोगुण में आता है. हाँ, जो मतलब पास मारता है या बासी है या ऐसा खाना जो है वो तमोगुण में आता है. हाँ, और कुछ ना करना, आराम से सोना और कुछ करना ही नहीं है, और लोगों को बुराई करना या विध्वंस करना, एकदम नेगेटिविटी से भरा हुआ डिप्रेशन, ये सब तमोगुणी का लक्षण है. राइट. रजोगुणी क्या है? बहुत एक्टिव होता है. बहुत एक्टिव रहता है. हुसैन बोल्ट है हाईएस्ट रजोगुण, तो भागता बहुत फास्ट है. रजोगुण क्या है? ओके, इसका इंग्लिश में जो नाम है इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस. राइट. द पैशन मतलब क्या है? रजस मतलब क्या? जो रज उसमें आप में जो कुछ करने की आप में जो रहती है, हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ करना है. रजोगुणी आदमी जो रहेगा ना, वो एक जगह पे साथ नहीं बैठ सकता है. he has to do something or the other. उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. दैट इज रजोगुणी. इसीलिए उसमें लोभ इस रजोगुण का ये है, लस्ट इस रजोगुण का स्वभाव है. आदमी को कुछ ना कुछ करना है, हार्डवर्क, और उसमें बहुत कुछ ये सब भी आ जाता है उसमें. मतलब वो लोभी भी रहता है, वो कामी भी रहता है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर. हाँ,
दैट इज रजोगुणी। तो अभी सत्वगुणी कौन है? कौन आता है सत्वगुण में? एटलीस्ट कुछ प्रोफेशन बताइए सत्वगुण के। शांत और शुद्ध भोजन, ओके, सात्विक भोजन, वो तो इजी हो गया ना, सात्विक भोजन सत्वगुण में आएगा। प्रोफेशन कौन सा है बताओ चलो। हाँ, गुरु, ओके, हाँ हाँ। सो बेसिकली जो आध्यात्म पाथ में है वो सात्विक है, और इनफैक्ट टीचर्स, पोएट और जो कवि है, जो शिक्षक है, वो भी एक तरह का सत्वगुण है। अगर आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ सत्वगुण रिक्वायर्ड। सत्वगुण इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा नहीं कि आज के आज ही हो जाना चाहिए, वैसा वो नहीं रहते हैं। वो आराम से एकदम पेशेंस के साथ आपके साथ डील करेंगे। हाँ, अगर शिक्षक है वो बोलेगा नहीं आज के आज ही तेरे को आना चाहिए, तो बेचारा स्टूडेंट का तो हालत हो जाएगा ना। He has to be really patient with the students, right? कोई स्टूडेंट अच्छा होगा जो तुरंत समझ लेगा, कोई स्टूडेंट ऐसा 10 बार सिखाने पे भी नहीं सीख रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि शिक्षक बोलेगा चल भाई तू जाते घर पे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हमारे उधर के शिक्षक ये बता सकते हैं कि कैसे आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ साथ कंपैशन, हाँ, ये भी जो एक गुण है वो सत्व गुण में आता है। दया की भावना एक सत्व गुण है। सो अभी आप हमने जो देखा सत्व रजस तमस, इसमें खाना भी आता है, इसमें दिनचर्या भी आती है। अभी कौन सा प्रहर जो है दिन का वो सत्व गुण का है? इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग में कौन सा टाइम? ब्रह्म मुहूर्त। व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? जो ब्रह्मा जी उठते हैं तभी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त से 2 घंटे पहले वाला जो भी टाइम रहता है, क्योंकि सूर्यास्त हर एक टाइम पे अलग अलग होता है, राइट? तो सूर्यास्त से सूर्योदय से 2 घंटे का पहले का टाइम, हाँ, इस मोड ऑफ गुडनेस कहा जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने एक और चीज यहाँ पे सब लोगों ने एग्री किया कि जो अध्यात्म के रिलेटेड जो भी क्रिया करते हैं उसे भी मोड ऑफ गुडनेस कहा गया है। इसीलिए आध्यात्मिक जो भी क्रिया करोगे आप, वो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है और आप अच्छे से कर पाते हो। हाँ, दोपहर में जप करना या रात में जप करना उससे अच्छा सुबह 4:30-5 बजे उठ के जप करने में बहुत अंतर होता है। हाँ, इसलिए बताया जाता है कि ऐसा जैसे हमारे माइंड को समझ लो कि हाईवे जैसा है। हाँ, आई हैव अ फॉर्चून टू गो टू श्री राधा गोपीनाथ मंदिर एवरी फ्राइडे। हर शुक्रवार को भगवान की सेवा के लिए मुझे एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा से मिला है ये मौका। तो हम लोग को सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे लेटेस्ट पहुंच जाना रहता है वहां पे। तो भी 4 बजे मैं निकलता हूँ घर से, मीरा रोड से ग्रांट रोड तक। कैन यू इमेजिन कितने टाइम में पहुंच जाता हूँ मैं? 35 मिनट्स में। मतलब कोई भी अड़चन नहीं है, पूरा खाली ऐसा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी बार ब्रेक नहीं मारनी पड़ती है, एक्सेप्ट यहाँ से चालू किया ब्रेक वहां पे जाके मार दी। पर अगर वही चीज मुझे समझो दोपहर की आरती के लिए जाना है और मुझे घर से 9:30 बजे निकलना है, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा 35 मिनट्स में? नहीं, मुझे एक्सीलरेटर से ज्यादा ब्रेक मारनी पड़ेगी जाते जाते। तो वैसा ही हमारे मन की स्थिति रहती है। जब भी हम सुबह जब करते हैं तो इट इज पूरा हाईवे क्लियर है, मतलब आपका मन जो है ना वो भगवान की ओर भागता है। जैसे ही 9:30-10 बज गया तो आपका मन किधर भागता है? हाईवे का सीधा भगवान की ओर नहीं भागता, किधर भागता है? बिल बोर्ड की ओर भागता है, क्योंकि आप रुके हुए, अभी आगे नहीं जा रही है गाड़ी, तो आप वो दूसरे गाड़ी में देख रहे हो क्या चल रहा है, उधर बाजू वाला बाइक वाला किधर घुमा रहा है वो देख रहे हो, उधर बिल बोर्ड पे कौन सी पिक्चर लगी हुई है वो देख रहे हो। तो ऐसे ही जपा के साथ भी होता है। जब भी आप दोपहर में जपा करोगे तो आपका माइंड इधर उधर जाएगा, पर अगर आप सुबह करोगे जपा तो आपका माइंड सीधा भगवान की ओर जाएगा। हाँ, तो दिन भी अलग अलग गुणों में है। अभी रजोगुण में कौन सा टाइम है? रात का, दोपहर का टाइम, लाइक एज सून एज सन राइजेस, बेसिकली 8 o'clock के बाद आप देखो पूरा, you don't have to go to Borivali station, any station in Mumbai, right? You see lot of Rajogun, like, you know, लोग धक्का मुक्की ये वो,
अगर आप सोचो रोज सुबह आए और कोई बोलेगा हाँ भाई आप पहले जाइए, होता है क्या कभी? देयर आर पीपल हु न्यू टू द बॉम्बे, बेचारा कम से कम 10 गाड़ी छोड़ेगा नहीं और उसके बाद समझेगा कि अभी मैं अगर नहीं घुसा तो मैं इधर ही रह जाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो उसको भी उसके साथ जाना पड़ता, वो भी आ जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया, रजोगुण के साथ एसोसिएट हो गया, तो उसमें भी रजोगुण आ गया। फिर रात पड़ते क्या होता है? तमोगुण। बस अभी कुछ नहीं करना है। तो एक्चुअली देखने जाओ तो ये सब गुण अगर आप सही से उसको ये करोगे तो भगवान ने इसलिए बनाया है। रात में तमोगुण एक्टिव होता है क्यों? क्योंकि आपको नींद की जरूरत है, आपकी बॉडी थक जाएगी, तो तमोगुण भी जरूरी है। पर अगर आप तमोगुण गलत टाइम पे यूज करोगे तो वो गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? अभी आजकल देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या बूढ़े मिडिल एज सब लोग यही करते हैं, रात को 12-1 बजे तक टीवी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज इट, बिंज वॉचिंग, राइट? बिंज वॉचिंग, लाइक जस्ट गो ऑन कंप्लीट द एंटायर सीरियल एक ही टाइम में खत्म। और फिर बाद में कितना 1-2 बजे रहेंगे, चलो थोड़ा भूख लगा है, स्विगी से कुछ मंगाओ, थोड़ा खाना खाया, टाइम पास किया, 3 बज गया, चलो अभी सो जाते हैं, क्योंकि क्या ब्रह्म मुहूर्त होने वाला, तो बेटर सो जाते हैं। एंड देन आप कभी उठते हो 1 बजे उठते हो, अभी क्या वो, दैट इज कंप्लीटली मिसयूज ऑफ द गुणास दैट लॉर्ड हैज गिवन यू, बिकॉज यू आर यूजिंग इट एट द रॉन्ग टाइम, आप गलत समय पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो चीज अगर सही टाइम पे किया जाए ना तो उसका बहुत अच्छे से आपको फायदा हो सकता है। इसके लिए गुण जो है वो इस तरह से है। अभी अहंकार, अहंकार क्या है? अहंकार तो रावण के पास था ना, हमारे पास नहीं है। रावण के पास था अहंकार तो, राइट? व्हाट इज अहंकार? ईगो। हाँ, सो यहाँ पे एक चीज है, श्रीला प्रभुपाद राइट्स एज अ फॉल्स ईगो। व्हाट इज फॉल्स ईगो एंड ईगो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड फॉल्स ईगो? एक्चुअली ईगो इज व्हाट? ईगो क्या है? I am something. Ego means identity in one sense. And when you have a true identity, when you are identifying yourself as a servant of the Lord, that is your true identity. Jivera Swarup hoy Krishnera Nityadas. Jivera Swarup means what? हम सब जीव हैं। जीवेरा स्वरूप होय नित्यरे कृष्णदास या कृष्ण नित्यदास, आप भगवान के इटर्नल सर्वेंट हो। अगर वो आप नहीं समझ रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स ईगो। इसलिए उसे अहंकार कहा गया है। तो अहंकार का कहां पे यूज होता है? अहंकार, वेयर डू वी यूज अहंकार? अहंकार को यूज करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक आ जाता है? ऑटोमेटिक आ जाता है once you get successful. once you get successful. ओके, एक बात बताओ, अहंकार कहाँ देखा है आपने? कोई जगह पे देखा है अहंकार आपने? दिन में दिखता है कभी कभी अहंकार? कौन सी जगह पे दिखता है अहंकार? आर यू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अहंकार दिखता है वहां पे? नहीं दिखता है। अच्छा, किसी को दिखा है अहंकार और कोई जगह पे? बस से ट्रैवल करते हो, एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, अहंकार आपको नहीं दिखता है? सिर्फ रावण में दिखता है, कंस में दिखता है, दुर्योधन में दिखता है, और किसी में नहीं दिखता अहंकार आपको? क्या बात है, आप सब लोग प्योर डिवोटी है, तो फिर हम भगवत गीता करके बंद करके सीधा कीर्तन ही चालू करते हैं। That is why I think we have a more attendance in the Kirtan program than here, all the pure devotees. अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपको कुछ जोर जोर से आवाज नहीं आती कभी कभी लड़ने की? क्या है वो? अहंकार है। जानता नहीं कौन है वो, कौन हूं मैं, वो am I? कोई बेचारा भगवत गीता का प्रचार करेगा तो बोलेगा यू आर स्पिरिट सोल।
Who am I? So what is अहंकार? Just think deeper. जब भी कोई बोलता है कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, वो क्या है? अहंकार है. वो क्या कहना चाहता है उससे? अगर वो कोई आपसे कह रहा है कि यू डू नॉट नो हु एम आई, जानता है मैं कौन हूं, इसका मतलब क्या? वो क्या कहना चाहता है? बताओ मुझे. superiority. He is superior. सुपीरियोरिटी, पावर. Power. ओके. एक और चीज वो बताना चाहता है उसकी. सुपीरियोरिटी, पावर एंड पोजीशन. मैं ये बंदा हूँ, मालूम है तुझे, आई एम द दिस एंड दैट. मेरा ऐसा एक लाइक यू नो आई एम द प्राइवेट लाइक यू नो व्हाटएवर चैट होल्डर और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट. आपके पोजीशंस, आपके पोजीशंस, उससे द्वारा आप बताना चाहते हो कि मैं कुछ हूं और तू मेरे सामने एक तुच्छ आदमी है, ज्यादा आवाज मत कर. That is what we see everywhere. Even ourselves sometimes get into this, right? We also get into this kind of things. So now यहाँ पे इस वर्ष में, इस जो श्लोका है, यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्म विभागस्य अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते. तो क्या कहना चाहते हैं कृष्ण? The spirit soul bewildered by the influence of false ego. So हमारा शरीर किसका बना हुआ है? Blood, urine, bones. Is that what Bhagavad Gita is saying? हमारा शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूत का. Earth, water, fire, air, ether. हाँ, ये पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है. इस शरीर के अंदर और कुछ भी है क्या पंच महाभूत के अलावा? कि शरीर में सिर्फ पंच महाभूत ही, और कुछ नहीं है? आत्मा है. आत्मा के अलावा और कुछ है? सी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज भगवत गीता हम समझ नहीं पाएंगे. आत्मा के अलावा और कुछ है? पंचभूत तो समझ गए हम लोग. ये बॉडी जो है, हड्डियां जो भी है, वो भी एयर फायर, एयर, ईथर उससे बना हुआ है, और किसी से नहीं बना है. हर एक चीज आप देख लो, राइट. वो पंच महाभूत से ही बना है. उसके अलावा कुछ शरीर में है. आत्मा है, जैसे माता जी ने बताया. मन है. और क्या है? हाँ, अहम तत्व. ओके. सेंस ऑफ सेल्फ. ओके. लॉट ऑफ ज्ञानीज वी हैव हियर. ओके. हाँ, बुद्धि. एग्जैक्टली. सो हमें तीन चीज तो मिल गया. आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और एक और चीज है, अहंकार. माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. इससे क्या बनता है? ये जो हमारा ये जो शरीर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थूल शरीर. ग्रॉस बॉडी जो दिखता है. और देयर इज अनदर बॉडी विद इन दिस बॉडी, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म शरीर. वो किसका बना है सूक्ष्म शरीर? और वाटर, फायर, एयर, ईथर का बना है सूक्ष्म शरीर? नहीं. किसका बना है? मन, बुद्धि, अहंकार. ये तीनों चीज का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर. तो जब भी किसी की भी मृत्यु होती है ना, तो स्थूल शरीर वहीं का वहीं रह जाता है. इसके लिए बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, एक जन को मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कि आत्मा क्या है. एंड ही वाज वंडरिंग कि क्या है. देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैपन, राइट. एक पर्सन हु इज गोइंग टू डाई, जो मरने वाला था, उसको एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, वो कांच का बॉक्स टूट जाता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या हो रहा है एट द टाइम ऑफ डेथ. एट द टाइम ऑफ डेथ इज वेरी वेरी सिंपल. भगवद गीता एक्सप्लेन्स, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति. हम लोग ने ये स्थूल शरीर जो है इसी जीवन में बदला हुआ है. आपका जो बचपन का बॉडी है या अभी का जो बॉडी है, उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? है ना. इवन साइंस इज सेइंग कि हर एक 7 साल में अपने each and every cell of this body is destroyed and the new cells are generated. So complete, you get a new body every 7 years. So what is the problem in understanding? That is what Bhagavad Gita is saying. Dehinosmin yatha dehe. The person who is embodied, right? He passed through the
childhood to young age to old age, and at the time of death, he just changes the body. He transmigrates from one body to another body. Dhiras tatra na muhyati. A person who is intelligent is not bewildered. हाँ? जो बुद्धिमान है वो ये जो चेंज से कभी bewildered नहीं होता है. जैसे बताया जाता है भगवत गीता, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. हाँ, जैसे आपके कपड़े फट गए तो आपने ये शर्ट को या कुर्ते को फेंक के दूसरा कुर्ता पहन लिया. लाइक दैट. ये शरीर जब भी काम का नहीं रहा तब ये शरीर को आपने निकाल दिया, दूसरे शरीर को धारण कर लिया. क्योंकि आप ये शरीर नहीं हो. अगर आप ये शरीर होते थे तो प्रॉब्लम क्या है, ये शरीर को जिंदा करो. There are so many people who want to, like, give a scientist so much money. I think Walt Disney का जो मालिक था वो बोला तुम चाहे कितना भी पैसा ले लो, मेरा बॉडी जब भी when I die ना, वो बॉडी को कुछ करो मत, उसको कोई ऐसी जगह पे रखो कि वो वैसा की वैसा रहे. And when you find out how to make a dead person alive, तभी मुझे जिंदा कर देना वापस से. Can you imagine? देखो क्या क्या बुद्धि है लोगों की, कहाँ बुद्धि चला है. अभी वही बुद्धि अगर वो इसमें लगाता था कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है जीवन का, तो उसका जीवन सफल हो जाता था. सीधा मैटर ऑफ फैक्ट आप मरना नहीं चाहते, इसका मतलब हम परमानेंट है ना. बट ये परमानेंट ये बॉडी में नहीं है, हम परमानेंट है एज एन आत्मा. सिर्फ ये बॉडी परमानेंट नहीं है क्योंकि ये मटेरियल है, पंचभूत से बना हुआ है, ये तो जाना ही है. तो जो क्या होता है एट द टाइम ऑफ दैट सोल लीव्स द बॉडी अलोंग विद द सटल बॉडी. आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है. आत्मा अकेला ट्रैवल नहीं करता है. जब भी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है. इसके लिए कई लोग बोलते हैं ना कि हमें प्रेत दिखते हैं, वो सब सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. एंड एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. हाँ, किसी ने बहुत अच्छा एक ये बनाया था, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं या तो मीम बोलते हैं, जो भी बोलते हो. हमारे एक डिवोटी युवा अवतार प्रभु करके, इज वेरी फेमस एज अता बोला. So he made a nice short saying that if one person comes and saying I'm going to Kumbh Mela, after 144 years something has come and I want to go and take a dip. So he said, are you coming? He said, no, I'm not getting a छुट्टी नहीं मिल रहा मुझे, मैं नहीं जा पाऊंगा. तो बोलता है नहीं तुम कैसे भी करके आओ. बोलता है ठीक है आप जाओ पर मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रे करना. एंड देन ही सेड अ वेरी अमेजिंग थिंग. ये 144 साल के बाद कुंभ आया है, बट आपको मालूम है कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो 84 lakhs ऑफ स्पीशीज के जाने के बाद मिला है. 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 आपको ये मनुष्य शरीर मिला है. तो तुम सोचो ये मनुष्य शरीर कितना पावन है आपके लिए क्या कर सकता है वो. 144 साल नहीं, 84 लाख. अगर आप एक योनि में एक दिन भी गिन लो ऑन एन एवरेज, तो भी 84 लाख दिनों के बाद आपको ये शरीर मिला है. और ये शरीर को अगर आप एक प्राणी की तरह गवा दोगे खाना पीना मौज मस्ती करने में, तो फिर क्या मतलब है इसका. ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, हमें जानने के लिए कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, वो करने के लिए मिला है. तो कुंभ में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुंभ में जाओ, डुबकी लगाओ, बट साथ साथ ये भी समझो कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो कितना कितना महत्वपूर्ण है. जिससे समझ लिया वही जा रहा है कुंभ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जाना चाहिए. मैं तो बोला जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे जाना चाहिए. इतना महत्वपूर्ण महोत्सव है ये कुंभ का. So now coming to this point, that why do you think that Krishna is saying that I am not the doer, right? Krishna is saying you are not the doer, but कौन कर रहा है ये सब चीजें? 3 modes are doing it, but जो अहंकार और विमूढ़ात्मा, एक्चुअली संस्कृत में मूढ़ा मतलब कौन? मूर्ख. मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख. विमूढ़ा का मतलब क्या होता है मालूम है? विशिष्ट प्रकार है ना मूढ़ा, विशिष्ट प्रकार का जो मूर्ख है, स्पेशल टाइप ऑफ
मूर्ख के भी प्रकार होते हैं। तो विशिष्ट प्रकार का मूर्ख है, वो क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं सोचूंगा कि मैं ये भगवत गीता आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरे परिवार का ध्यान रख रहा हूं, मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूं, आई एम द सेल्फ मेड पर्सन, होता है कि नहीं कई बार। सो हु इज द डूअर? हु इज द डूअर? हाँ, पड़ोसी, देन अपने ऊपर वाला, हु इज द डूअर? तो करना अरे यार वर्ष पढ़ो, वापस से पढ़ता हूं, रुको। it's God. The spirit soul bewildered by the influence of false ego think himself the doer of activities that are in actually carried out by the three modes of material nature. Who is the doer? Who is the doer? पूरा क्यों इतना शर्मा क्यों रहे हो आप लोग? इतना कंफ्यूजन क्या है? Who is the doer? Gunas, the modes of material nature. How is it? आप बोलोगे यार मैं यहाँ पे माइक लगाया खुद, मैं बोल रहा हूं आई एम द डूअर। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मैं आपका थोड़ा बुद्धि को टटोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे बढ़ना। डू यू अग्री व्हाट कृष्णा सेज और यू डिसएग्री? मैं खुद कर रहा हूं यार, मैं खुद रिक्शा लेके आया, मैं खुद का पैसा रिक्शा वाले को दिया, मैं नहीं आया यहाँ पे। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई, और मैंने ही मेरा घर खरीदा है, मैंने जब भी साइन किया, त्रिगुण ने थोड़ी साइन किया है। हाँ, जो अभी क्या बोलते हो उसको, दस्तावेज है, जो भी बोलते हो आप, क्या वो अग्रीमेंट। हाँ, अग्रीमेंट पे साइन तो मैंने किया है, 3 गुण ने थोड़ी किया है। So who is the doer? Why Krishna is saying that in Gun is the doer? Because under the influence of these three guns only we do any act. Exactly. अब देखो, we are actually the slaves. हम लोग ना ये गुण के गुलाम है, गुलाम, लिटरली, है कि नहीं? सुबह में आप यू डोंट सी एनी क्रिमिनल एक्टिविटी हैपनिंग जनरली, you see all the criminal activities happening in the night only, most of the time, right? So you see how gunas sometimes, आपको कितना भी ये होगा ना, आप बोलेंगे नहीं मेरे को कैसे भी कनेक्ट, लोग आके बोलेंगे बेटा तू शांत हो जा, थोड़ा बैठ जा। आप रजोगुण से इतने प्रभावित हो गए हो कि अभी कोई आपको पीछे ले ही नहीं आ सकता, चाहे कितना भी हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते अपने आप लाइफ को। कभी कभी ना ऐसे अपने आप को भी ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि हाउ यू आर बिहेविंग सो डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। यू बिकम द विटनेस ऑफ योरसेल्फ, अपने आप के गवाह बनना सीखो, तब देखोगे कि क्या हो रहा है अपने साथ, और आप अचंभित हो जाओगे कि वाह, आई एम लिटरली वर्किंग एज पर द मोड्स। जैसे ही गुण प्रभावित होता है मैं उसी तरह से काम कर रहा हूं, मैं खींचा चला जा रहा हूं लिटरली। अब आपको लिटरली लगेगा कि आप एक असहाय हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप भक्ति करते हो ना, तभी आप 3 गुण में नहीं रहते, आप क्या करते हो, 3 गुणों से आप ऊपर उड़ जाते हो। यू बिकम इनटू द शुद्ध सत्व, यू गो बियॉन्ड द मोड्स। तो चाहे कितना भी रजोगुण आपके ऊपर प्रभावित होगा, बट अगर आप भक्ति सही से करते रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। आप उसको बोलोगे रजोगुण को, बैठ जाए यहाँ पे शांति से, रजोगुण बोला मैं नहीं बैठ सकता और तुमको भी नहीं बैठने दूंगा। दैट स्ट्रगल में इफ यू हैव योर कंट्रोल थ्रू भक्ति,
then रजोगुण can be subdued. नहीं तो रजोगुण आपको उठा के लेके जाएगा. मैंने कई बार देखा, ऐसा क्लास चल रहा होगा ना, फोन आएगा, जैसे मेरा भी फोन बजा था, राइट? नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट फोन, कैसे भी करके करना ही पड़ेगा. अभी नहीं किया तो खत्म. नहीं, you have to learn to tolerate the urges coming through these gunas. तमोगुण बोलेगा नहीं यार, छोड़ दे, गिव अप मार दे. But if you have learned that through Bhagavad Gita, that gunas are actually making me do things, I'm becoming a slave of these gunas. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, this is a final thing I'm telling you on the gunas, right? How it is you are actually governed by the gunas. अभी कितना डिफिकल्ट है सत्व गुण में जाना? How many of you can get up at 4:30? Raise your hand. We have one Prabhu here, one mother here. See, they are no, seriously. It's very, very good in your life. It's a blessings. But ask others how difficult it is to get up at 4:30. Now 4:30 you can get up, but what do you do after 4:30 getting up? That is also another important, right? What do you do after getting up at 4:30? You start thinking, अरे यार आज ये करना है, वो करना है, चले गए ना फिर. After getting up at 4:30, you take your bath and peacefully you sit in front of your altar, wake up the Lord and nicely do the seva of the Lord. That is what coming to the mode of goodness. एक जगह पे बैठ के आपने 16 माला कर लिया अपना. That is mode of goodness. कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. आपके माइंड विल लेबर लाइक एनीथिंग. माइंड बोलेगा पागल है इस्कॉन वाले, 16 नंबर के पीछे पड़े, पता नहीं क्या है 16 नंबर में. जब देखो तब 16 नंबर, जब देखो तब 16 नंबर. अरे भाई इतना क्या है 16 नंबर? माइंड कैन टेल यू सो मेनी थिंग्स. The goodness व्यक्ति will see कि अरे हाँ कुछ तो है इसको. Why Prabhupada said this? और प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि मैक्सिमम 16. प्रभुपाद ने क्या बोला? मिनिमम 16. जब भी आप वेट लिफ्टिंग या कभी भी कोई जिम में जाओगे, हाँ आप जाओगे बोलोगे नहीं मैंने एक डंबल उठाना जा रहा हूँ, चलो हो गया मेरा. बोला भाई कल से मत आना. आना है तो मिनिमम 15 मिनट्स. हाँ मिनिमम 15 मिनट्स, वरना मत आना. क्यों? क्योंकि वो करोगे तो मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ का. इसीलिए प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16 राउंड्स. और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि शुरू से ही आप 16 राउंड्स करो. धीरे 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 करके, जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है, जैसे पहले वो 5 मिनट बोलेगा, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा. Then you will go seeing your body is coming in shape. Right? So similarly for this also. And that is where you see how difficult it is. Mode of passion से, रजोगुण से ऊपर उठना कितना डिफिकल्ट है मालूम है? सत्वगुण में जाना. You see yourself, प्रैक्टिस करके देखो. और जो तमोगुण से प्रभावित है उसको जाके पूछो रजोगुण में जाना कितना डिफिकल्ट है. आपके ऑफिस में रहेंगे कोई तमोगुणी, उसको बोलो भाई ये काम करना है, डेडलाइन आ रहे हैं. डिप्रेशन है मेरे को, क्या करूं भाई? तू डिप्रेशन में, मेरे को भी लेके डूबेगा भाई. So we are laughing, but he is actually prominent by this tamogun. It's difficult है उसके लिए. Both these drug addicts, they are all tamogunis. So difficult to get them out of the drug. But it is possible when they associate with the devotees. When you how they can come out of this tamogun or rajogun? Because you are associating with the devotees means what? The devotees are going to give you what? Sattva gun. Shuddha sattva. What we are doing right now is Shuddha sattva activity. हम लोग जो भी ये कर रहे हैं वो सत्व गुण भी नहीं है, शुद्ध सत्व की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं. एंड कृष्ण इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर. यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट. श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप आयरन रॉड ने आग में डाल दिया आयरन रॉड को, और उसको 1 घंटा तक तपाया आग के अंदर, तो आयरन रॉड क्या हो जाएगा? वो भी आग ही बन जाएगा. एंड यू डोंट बिलीव इट, देन टच इट टू योर आईज.
Srila Prabhupada used to say that. अगर एक आयन आग के साथ रहेगा तो आग की प्रॉपर्टी ले लेता है, अगर उसको फ्रिज में रख दिया, आइस में रख दिया तो आइस की प्रॉपर्टी ले लेगा. तो आप जिसके साथ एसोसिएट करोगे, हाँ, जैसा संग वैसा रंग. तो कोई भी अगर डिप्रेशन में है या ज्यादा रजोगुण में है, अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आता है, वो अपने आप को चैंटिंग से जोड़ता है, अपने आप को भगवत गीता की रीडिंग से जोड़ता है, तो अपने आप को सत्वगुण और उसके ऊपर उठा देता है. ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा, वो प्रैक्टिस करने से धीरे 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 करके वो प्राप्त करता है. इसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी. इसके लिए कृष्ण इज टेलिंग दैट यू आर नॉट द डूअर, एंड इफ यू थिंक यू आर द डूअर, यू आर द मोस्ट फूल. दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग अहंकार विमूढ़. विशिष्ट प्रकार का मूर्ख है, वो सोचता है कि मैं डूअर हूं. सोचो ना यार, हमको जहां पे हम हैं, कितने लोगों ने मदद की है. Believe me, I went to America. I don't think so. I went because of my own qualifications or because of मैं जहां पे काम करता था पहले, it was a small company. उसका कहीं पे यूएस में कनेक्शन था, उसने कॉल करके मेरा कनेक्शन करवाया उसका. So I give credit to him. It's not just because of my own this thing I could go. तो हमारी जिंदगी में जो भी सफलता हमें मिलती है, उसके पीछे कई लोग होते हैं, कई लोगों का आशीर्वाद होता है, कई लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं, तभी जाके हम कुछ कर पाते हैं. तो we will end with this last thing is when Krishna says that we are not the doer, doesn't mean that कि तो फिर सब लोग बोलेंगे नहीं मैं डूअर ही नहीं हूं, तो मेरे पाप कर्मों का फल मुझे क्यों भोगना है. कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं डूअर हूं ही नहीं, तो कहां से कर्म की बात कहां से आ गई फिर. हाँ, मैंने कुछ पाप कर्म किया तो वो भी मोड ऑफ गुडनेस ने या मोड ऑफ तमोगुण ने करवाया मुझसे. मैंने किसी का मर्डर कर दिया, हाँ, तो मैं तमोगुण में था, तो किसी ने इसके लिए मैंने कर दिया मर्डर. तो तमोगुण को फांसी, तो मुझे क्यों फांसी दे रहे हो भाई. मैंने तो कुछ नहीं किया है, जाके भगवत गीता पढ़ लो. मैं जज को बोल सकता हूँ, मुझे वकील की जरूरत नहीं, मैं भगवत गीता के दम पे मैं अपने आप का वकील हूँ. चलो भगवत गीता बता दो. भगवत गीता से ऊपर से जब भी लोग आते हैं तो पहले देखा बता दें कि मैं भगवत गीता पे हाथ रखे कहो, जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे. दैट मींस यू आर कंसीडरिंग भगवत गीता एज अथॉरिटी. और भगवत गीता खुद बोल रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो गुणों से हो रहा है. तो तमोगुण ने मेरे से मर्डर करवा दिया, अभी मैं क्या करूं. तो क्या कहोगे आप. So Krishna explains further, because that is what happens when you put close to Bhagavad Gita and put it in your cupboard and lock the cupboard, और कभी उसको पढ़ोगे ही नहीं. That is calling out of the context. हाँ, तो कृष्णा आगे 18वें अध्याय में कहते हैं कि 5 प्रकार के स्थिति होती है जिससे एक्चुअली कार्य संपन्न होता है. हाँ, तो आई विल क्विकली टेक यू टू दिस. 18.13 to 16 जो है वो हम लोग क्विकली विल रीड दैट एंड विल कंक्लूड टुडेस डिस्कशन. आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन, ठीक है. O mighty armed Arjuna, according to Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all actions. Now learn of this from me. There are place of action, the body, the performer. Performance is what? The soul himself, right? The various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the supreme soul. These are the 5 factors of action. Whatever right or wrong actions a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. So ultimately क्या है? We have the free will. हम लोग ने डिसाइड किया. अभी वो कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा वो बाकी सब स्थिति के ऊपर है. हाँ, उसमें देव के भी अग्रीमेंट होना चाहिए, और पिछले एंडेवर्स जो कर्म है उसका भी परिणाम होना चाहिए. अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हो पर आप कर ही नहीं पा रहे हो. It actually happened. There was one person, I will not mention his name, one person who wanted to actually, he was given a supari किसी डिवोटी का, and this person, मतलब डिवोटी का नहीं किसी और का, and उस टाइम पे ना वहां से संकीर्तन जाता था हर बार शाम को, और उसको वो शाम को उसका मर्डर करने का था, तो ब्रिज के नीचे चाकू लेके खड़ा रहता था और वो बंदा वहां से आने वाला था. उसी टाइम पे ये संकीर्तन की आवाज आती थी उसको, तो वो एंडेवर ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो इतना पावरफुल था ना वो वाइब्रेशन.
मोड ऑफ गुडनेस है, तो ही कुडंट डू दिस एक्ट ऑफ तमोगुण कैसे भी करके, तो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया वो एक्ट. एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग दिस पीपल एंड ही बिकेम अ डिवोटी. एंड ही एक्चुअली वेंट टू द पुलिस स्टेशन भी जाके कन्फेस भी करके आया कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना चाहता था, आपको जो भी सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं. तुम सोचो कैसा हृदय परिवर्तन हो सकता है. सो अल्टीमेटली हम जो इच्छा करते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसका भी हमको भुगतना पड़ता है अगर आप यू एंड अप डूइंग दोस थिंग्स. अगर आपने किसी का नुकसान करना चाहा, किसी की पटवा मारना चाहा, या किसी का जाके चुगली करना चाहा, मतलब आपने खुद डिजायर किया ना, वो कर्म लगेगा आपको. जैसे आपने कुछ पुण्य कर्म करना क्या किया, आपने कुंभ में जाने का ये लिया, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा उसका. तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है. वो क्या है कि मोड ऑफ जो गुण है वो आपको प्रभावित करते हैं कुछ करने के लिए, इसकी वजह से आप कुछ कार्य करते हो. तो आपने जो इच्छा की वो भी आप गुण से प्रभावित होकर ही कर रहे हो, पर आपने किया ना, तो अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन हुआ, आप ही हुए. तो अगर आप सही संगत में आके सही कार्य करते हो, तो धीरे 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 करके आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर के, ये पाप पुण्य के चक्कर से आप पूरे ऊपर उठ सकते हैं. इसके लिए समझना बहुत जरूरी है. व्हेन कृष्णा सेज यू आर नॉट द डूअर, डजंट मीन दैट यू आर, व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से, यू आर नॉट द ओनली डूअर. आप एक डूअर हो, उसके ऊपर प्रकृति डूअर है. हाँ, जिसने आपको ये सब फैसिलिटी दी कुछ करने के लिए. हाँ, सो प्रकृति इज ऑल्सो डूअर. और उसके ऊपर कौन डूअर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. तो अगर आप सोचोगे कि इतना सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ही वो किया हुआ है. किसी को मरना था क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी का कुछ किया रहेगा. तो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, बट वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम एवरीथिंग टू कर्मा एंड दोस थिंग्स, राइट? Because that is what Krishna is also telling, that become detached from all these things, because this is complete mess. आप कर्मों को नहीं समझ पाओगे. कृष्ण himself says, जो कर्म की जो गतिविधियां है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है. अरे इसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया, तो करके करते 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 उसके चक्कर में जाओगे तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि कुछ भी नहीं कर पाओगे. इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके नॉट को कट कर देना है. किससे? ज्ञान और वैराग्य से. नॉलेज एंड डिटैचमेंट से उसको कट करना है, एंड तभी जाके आप इसके ऊपर उठ सकते हैं. तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि वी ऑल एसोसिएट विद द राइट सेट ऑफ मोड्स. खास करके सत्व गुण, और सत्व गुण में आध्यात्मिक चीजें करते 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 हम ऊपर उठ जाएंगे शुद्ध सत्व में, एंड फिर उससे विल फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस कंप्लीट मैस ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ठीक है? So that's what we end. Thank you very much. Hare Krishna. Sorry we went ahead, but we will definitely chant one round together.